الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور آل نبی اولاد علی سے مودت اور عقیدت رکھنے والے دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت آداب، پیار، محبت اور سلام۔ تو پہلے التماس کہ جن بچوں نے ابھی تک، جن مومنین نے، مومنات نے ابھی تک اس چینل کو، یہ میرے نام پر بنا ہوا ہے وزیر علی چوہان کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور دوسری چیزوں پر، آپ ان میں شیئر کریں، آپ اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اور آپ کو اس کا انشاءاللہ مدلل جواب دیا جائے گا بچوں کو۔ تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کا دوسرے کا ذکر کرتے ہیں۔ صرف اور صرف آل نبی اور اولاد علی کے لیے یہ چینل مخصوص ہے، صرف ان کا ذکر ہے۔ تو کسی کے خلاف اور کسی دوسرے کی بات کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اس کو سبسکرائب کریں، وزیر علی WAZIRALICHOHAN چوہان کے نام سے یہ یوٹیوب چینل ہے، اور آپ یہ نام لکھیں گے تو آگے جناب غازی عباس علمدار کا نشان آ جائے گا، پنجے کا۔ تو آج کے ذکر میں ہمارا ہے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام، جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو یہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضور ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، میں نے آپ کے ہاتھ دھلائے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے شروع کر دیا۔ ہم نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یا علی، آج آپ تمام کے باامن اجتماع کو دیکھ کر بہت خوش ہوں اور اسی خوشی میں سجدہ کیا۔ اسی اثناء میں سجدہ میں ذات احادیث نے تم میں سے ایک ایک کے حالات بتائے، میری فاطمہ کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک ہوگا، تجھے کس طرح محراب میں شہید کیا جائے گا، حسن کے جنازہ پر کون تیر برسائے گا، اور میرے حسین بیٹے کو کیسے اور کہاں ظلم و جور سے شہید کیا جائے گا۔ امام حسین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ایک جگہ شہید ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بیٹے، تمہاری ماں اور تیرا بھائی اسی جگہ مدینے میں رہو گے، تیرا باپ عراق کے ایک کونے پر ہوگا اور تو کربلا کے میدان میں ہوگا۔ امام حسین نے عرض کیا، پھر ہماری قبروں پر تو آنے والا کوئی نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی قبروں پر بہت سے لوگ آپ کی زیارت کو آئیں گے، اور جو بھی آپ کی زیارت کو آئے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ کے رزق کے اس میں برکت دے گا، اللہ اسے خوف جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو لحاف میں عبداللہ ابن یحییٰ سے منقول ہے کہ جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے ہم حضرت علی کے ساتھ تھے، جب آپ کربلا میں آئے تو باواز بلند پکار فرمایا، حسین بیٹے صبر کرنا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، ایک دن میں حضور کے پاس گیا اور دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آقا ہماری جانیں آپ کا قربان ہوں، خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے آپ کے رونے کی؟ آج آپ کے آنسو بڑی تیزی سے بہ رہے ہیں، کیا کسی نے دل کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا، یا علی، زندگی تکالیف کا نام ہے، اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر وہ کون ہے جس نے کبھی محمد کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہو؟ ویسے جبرائیل نے بڑے عجیب سے انداز میں مجھے میرے لخت جگر حسین کے دریائے فرات پر شہادت کی خبر سنائی ہے، اور مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا میں آپ کو خاک کربلا سونگھنے کے لیے دوں؟ تو میں نے کہا، ہاں جبرائیل، میں اپنے بیٹے کی مقتل کی مٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ہاتھ دراز کیا اور مجھے خاک کربلا سے ایک مٹھی اٹھا کر دی۔ جب میں نے مقتل حسین کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور سونگا تو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب امام حسین
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सन 2 बरस का हुआ तो आ हजूर अपने एक सफर के सिलसिला में बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। चलते चलते एक जगह रुक गए और पढ़ने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे अपनी निगाह रिसालत से खित्ता करबला नजर आ रहा था, जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशा के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। लाश पर दौड़ने वाले घोड़े हाँप रहे हैं। एक टीले पर यतीम बच्चे अपनी माओ की झोलियों में सहमे हुए बैठे हैं। मेरी किसी भी बच्ची के सर पर चादर नहीं है। आह, मैं क्या देख रहा हूं। बेपालान के ऊंटों पर मेरी पर्दादार बच्चियों को बेमकना चादर सवार किया जा रहा है। हाय बेटे हुसैन, तेरा इम्तिहान बड़ा सख्त है। मुझे चश्मे रिसालत से शाम का दरबार नजर आ रहा है, जिसमें मेरी बहू बेटियां रसन बस्ता खड़ी हैं और सिर हुसैन यजीद को बतौर तोहफा पेश किया जा रहा है। याद रखो बखुदा, जिसने भी मेरे हुसैन बेटे को सर को देखकर खुशी का इजहार किया, अल्लाह उसे अजाब अलीम से नवाजेगा। अल्लाह इब्ने मरजाना पर लानत करे, सर हुसैन को देखकर खुश हो रहा है और बड़ी बेहयाई से कह रहा है, हुसैन तेरे दांत कितने थे हसीन थे। हुसैन तेरे दांत कितने हुसीन थे। आप अपने सफर से इंतहाई दिल बर्दाश्ता और गमजदा वापस हुए। मदीना पहुंचकर मिंबर पर तशरीफ ले गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन को पास बुलाया। इमाम हसन को दाएं और इमाम हुसैन को बाएं जानू पर बिठाया, फिर खुतबा दिया। जब खुतबा से फारग हुए तो दायां हाथ इमाम हसन के सर पर और बायां हाथ इमाम हुसैन के सर पर रखा और अर्ज किया, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार पालने वाले, मोहम्मद तेरा नबी है, तेरा अब्द है और तेरा रसूल है। तू जानता है ये दोनों मेरी ज़ुर्रियत से है, मेरी नस्ल इन्हीं से है। यही वो हैं जो मेरी उम्मत में अपने बाप के बाद खलीफा होंगे। ए अल्लाह, मुझे तेरी बारगाह से जिब्राइल ने बताया है कि मेरा हसन बेटा जहर से और हुसैन बेटा दरियाए फुरात के किनारे प्यासा शहीद होगा। मेरे अल्लाह, इन्हें सैयदुश शुहदा बना, ज़ुर्रियत हुसैन को बरकत दे, इनके कातलों को आतिश जहन्नम का बदतरीन अजाब दे। मेरे अल्लाह, तू ही इनका वली और नासिर बनना। फिर फरमाया, ए लोगो, मैं 2 ही कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी ज़ुर्रियत, जो हौज कौसर तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। याद रखो, मैं क़यामत के दिन तुमसे दोनों के बारे में पूछूंगा। ख्याल रखना, कल हौज कौसर पर मुझे अजियत देने वालों से मैशूर ना होना। यह सुनकर सहाबा रोने लगे। आपने फरमाया, आज तो तुम रो रहे हो, लेकिन कल जब मेरा हुसैन प्यासे होंठों से हल मिन नासिर कह रहा होगा, तुम लोग सुन रहे होगे, लेकिन इसकी मदद को नहीं करोगे। अज़ादारों, तारीख जानती है कि उम्मत मोहम्मद ने ज़ुर्रियत मोहम्मद से क्या सलूक किया। उम्मत के सलूक का तज्जिया इमाम सज्जाद के इस जुमला से हो जाता है, जो आपने एक मुकाम पर फरमाया था, बखुदा, अगर मेरा नाना अपनी उम्मत से कह जाता कि जितना हो सके मेरी ज़ुर्रियत पर जुल्म करना, तो नाना की उम्मत इससे ज्यादा मुजालिम ना कर सकती जो अब किए हैं। हालांकि मेरे नाना ने अपनी उम्मत को हमसे हुस्न सलूक करने की वसीयत की थी। फिर आ हजूर ने फरमाया, याद रखो, क़यामत के दिन मेरे पास 3 अलम आएंगे और मेरी उम्मत इन तीनों अलमों में तकसीम होगी। एक अलम स्याह होगा। इस अलम को स्याही इतनी शदीद तर होगी कि इस स्याही से मलाइका तक खौफ खा जाएंगे। ये लोग मेरे सामने आ खड़े होंगे। मैं इन लोगों से सवाल करूंगा, आप लोग कौन हैं? इन्हें मेरा नाम तक भूल चुका होगा। जवाब देंगे, हम अरब के अहले तौहीद हैं। मैं कहूंगा, अगर तुम्हें याद हो तो मैं मोहम्मद नबी हूं, जो अरब व अजम का नबी था। ये लोग कहेंगे, तो फिर हम आप ही की उम्मत है। मैं पूछूंगा, मेरे बाद अल्लाह की किताब और मेरी ज़ुर्रियत से क्या सलूक किया था? ये जवाब देंगे, जहां तक किताब खुदा का तल्लुक है तो इसकी तरतीब को हमने बदल दिया था और जो अहकाम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक थे इन पर अमल किया था। बकिया अहकाम की अपनी मर्जी के मुताबिक तावीलें कर ली थी। और जहां तक आपकी ज़ुर्रियत का तल्लुक है तो आपकी बेटी से लेकर आखिर तक हमने काफ़ी कोशिश की थी कि इनका नाम भी कोई ना सुने। पहले तो आपकी ज़ुर्रियत को तो ख़त्म करने की कोशिश की, मदीना में मारा, मदीना बदर करके इन्हें कत्ल किया। जब फिर भी बच गए तो फिर यही कोशिश करते रहे कि उम्मत के कान इनके नाम से आशना ना हो। मैं इन लोगों से मुंह फेर लूंगा, मलाइका इन लोगों को मुझसे दूर कर देंगे और ये प्यासे हौज से वापस चले जाएंगे। फिर दूसरा परचम आएगा, उसकी स्याही पहले इल्म से कई गुना ज्यादा होगी। मैं इनसे वही सवाल करूंगा। ये लोग जवाब देंगे,
जहां तक किताब खुदा का ताल्लुक है, इसकी हमने खुलकर मुखालिफत की थी, और जहां तक आपकी ज़ुर्रियत का ताल्लुक है तो इसे नेस्त व नाबूद करने में हमने अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ी थी। इनसे मैं कहूँगा, फिर मुझसे क्या लेने आए हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मुलाइका इन्हें भी हौज से दूर कर देंगे। फिर तीसरा आलम आएगा, इन लोगों के चेहरे नूरानी होंगे। मैं इनसे पूछूंगा, तुम कौन हो? ये जवाब देंगे, हम तौहीद के कायल और आपकी नबूवत के अकीदतमंद हैं। हम अहले हक हैं। हमने किताब खुदा पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा। आपकी ज़ुर्रियत के सिलसिला में आपकी हर वसीयत पर अमल की कोशिश की, हर मुकाम पर मकदूर पर इनसे ताउन किया, इनके दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन जाना। मैं इनको कहूँगा, तुम्हें बशारत हो, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। वाकई तुम लोग जैसा कह रहे हो वैसे ही थे। इन्हें मैं हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा। ये लोग सैराब होकर खुशी खुशी वापस चले जाएंगे और हमेशा के लिए दाखिल जन्नत हो जाएंगे। मशीरुल अहज़ान में है कि एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। आप तशरीफ फरमा थे। भाई को देखकर उठ खड़े हुए। इमाम हुसैन आपको देखकर रोने लगे। इमाम हसन ने पूछा, आज खैरियत तो है, तो क्या बात है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज खुदा जाने मुझे क्यों वो वक्त याद आ रहा है जब आप ज़हर जफा से शहीद होंगे और आपके जनाजा पर तीरों की बारिश होगी। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, भाई को गले लगाया और फरमाया, भैया मेरी शहादत तो बहुत मामूली सी शहादत होगी। एक जाम जहर मिलेगा और मेरी मैयत पर तीरों की बारिश होगी। लेकिन क्या मुझे हक है कि मैं आपके इस वक्त पर दो आंसू बहा लूं, जब 32,000 का लश्कर आपके मुकाबला पे होगा? आप प्यासे होंगे, आपके इर्द गिर्द आपके प्यासे बेटों की लाशें होंगी, आपके गिर्द इन लोगों का घेरा होगा जो उम्मत मोहम्मदिया होने का दावा करेंगे। हर तरफ से जहर में बुझे हुए तीरों की बारिश होगी और बाद अज़ शहादत आपकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। तो इसके साथ आपसे इजाजत भी, और जनाबे अल्लाह ताला से, जनाबे परवरदिगार आलम से दुआ भी है, रब्बे कायनात से, कि जब मैं थक जाऊं तो मुझे आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो मेरी ताकत बन जाना, जब मैं दुख और तकलीफ में हूं तो मेरा मरहम बन जाना, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरा भरोसा और यकीन बन जाना, जब मैं भूख से नढाल हो जाऊं तो मेरी ग़िज़ा बन जाना, जब हर तरफ से बेचैनियां बढ़ जाएं तो मेरा सुकून बन जाना, जब मेरे अंदर मायूसी का अंधेरा बढ़ने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, और जब हर चीज़ नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को मेरे लिए मुमकिन बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और आपसे इल्तिमास है कि जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो चैनल, वो इसको सब्सक्राइब कर ले। वज़ीर अली चौहान के नाम से बना हुआ है। आपसे बहुत बहुत इल्तिमास है, और वस्सलाम, खुदा हाफिज़।